Hello, my dear MBA final year students. So today I am having the unit 4 of project management, focusing over this particular project scheduling and network analysis. So in this particular unit, we will discuss about how what is the role of time whenever we are going to complete the project. So we will discuss different methods and techniques here. So first of all, we have to understand how to estimate time accurately, right? What is the purpose of that one? We know time estimate derive the setting of deadline for delivery of projects and hence people assessment of your reliability. हमें प्रोजेक्ट मिल गया, कब कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगेगा, बिकॉज द प्राइम रिलायबिलिटी इज फोकसिंग ओवर दिस ओनली एंड ओनली बीइंग कॉल्ड टाइम. So they often determine the pricing of contracts and hence their profitability. जब तक आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे, you are unable to create your reliability as well as your profitability. So other high urgency tasks to be carried out, which will be have priority over this one. एक्सीडेंट इमरजेंसी से बचने के लिए, इंटरनल मीटिंग्स के लिए, हॉलीडेज एंड सिकनेस इन एसेंशियल स्टाफ कभी भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट विद अदर कस्टमर्स, हो सकता है हमें काम किसी को देना पड़े, किसी कस्टमर ने कोई काम दे दिया, नए कस्टमर्स टू क्रिएट, ब्रेक डाउन इन इक्विपमेंट. वी आर हैविंग आवर वर्क इन आवर फैक्ट्री बट ब्रेक डाउन इज देयर ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न. कुछ भी हो सकता है, पावर ब्रेक हो गया, स्ट्राइक हो गया, राइट, कोरोना की वजह से जैसे बंद कर दिया है, वट एवर द रीज़न, प्रॉब्लम माइट बी देयर. मिस डिलीवरी बाय सप्लायर्स, जहाँ से मेरा गुड्स आना है वहाँ से मेरे को सप्लाई नहीं मिला एंड आई एम अनेबल टू कंप्लीट माई टास्क विद इन टाइम. एंड वेन एवर द क्वालिटी कंट्रोल रिजेक्शंस आर देयर, I have prepared my goods, I have submitted for inspection purpose, but that inspection committee, they have rejected the quality. So I have to again go through this particular project. So we may have certain issues. That is why to keep all this in particular mind, we have to set particular timing कि when to work is to be started and how the work will be completed in what time. So the role of estimating time accurately is very important in project management. So we have to go for scheduling the project. Scheduling is an inexact process in that it tries to predict the future. काम कब खत्म करना है, identifying the tasks that need to be carried out, estimating how long that will take, allocating resource particular timing accordingly, scheduling when the task will occur. हमें देखना पड़ेगा कब occur होगा, कब काम होने वाला है. So we are having different process, different methods. One that is milestone chart, second that is Gantt chart, then CPM and PERT. Right, सब आपने सुने हुए होंगे, but we will discuss it one by one. Milestone chart, it signifies the event in the life of a project, usually critical activities, right, जैसे installation of equipment, completion of a project, file conversion and cut over to new system. पुराने को हटाया, नए पे हम जा रहे हैं, right. Then we are having Gantt chart. Gantt chart is a type of bar chart. bar chart की तरह हम शो करते हैं, which shows the project schedule और it illustrates the start and finish date. कब से start होना है, कब खत्म होना है, और बाद की बीच की जितनी भी एलिमेंट्स है सब हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, राइट. फोकस है हमारा स्टार्ट फिनिश पे, राइट. टर्मिनल एलिमेंट्स एंड समरी एलिमेंट्स कंप्राइज द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट. वर्क को ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और प्रॉपर टाइमिंग देखते हैं कब खत्म होगा, और देखते हैं डिपेंडेंसी आने वाली एक्टिविटीज की, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ओवर द प्रीवियस वन, दैट वी हैव टू चेक इट डाउन हियर. इट इज़ वेरी यूजफुल टास्क को प्लान आउट करने के लिए. इट गिव्स द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग, एक प्लान बनाने के लिए, और वी हैव टू सेट आवर क्रिटिकल पाथ लेटर. सर्टेन स्टेप्स आर देयर, वी हैव टू लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल एक्टिविटीज. जो मेरे प्लान में पहले प्लान बनाया उसकी सारी एक्टिविटीज को लिस्ट आउट किया. देन वी विल हेड अप अ ग्राफ पेपर पे वी विल पुट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द डेज और वीक एज पर माई रिक्वायरमेंट. देन आई विल प्लॉट द टास्क और द ग्राफ पेपर अभी शो करता हूँ आपको. देन आई विल शेड्यूल द एक्टिविटीज, देन विल प्रेजेंट द एनालिसिस. दीज आर द राइट डाउन स्टेप्स ऑफ दैट.
We may have again example. Suppose there are 7 tasks labeled A through G. Some tasks can be done concurrently, साथ साथ में A and B, while others cannot be done until their predecessors. उससे previous वाला काम complete नहीं हुआ था. As C cannot begin until A is complete. Additionally, each task has 3 time estimates. 3 कौन कौन से? ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, ऐसे हम जानते हैं. तो एक्सपेक्टेड टाइम का जो फार्मूला होगा दैट वुड बी O प्लस 4 टाइम्स ऑफ M प्लस P एंड ऑल डिवाइड बाय 6. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सपोज दिस एन एग्जाम्पल, दिस एक्टिविटीज ABCDEFG डिनोटेड इन द एग्जाम्पल. A और B कंकरेंट स्टार्ट होंगे तो उनके पीछे कोई प्रेडिसर्स नहीं होंगे. C होगा A के स्टार्ट होने पे, D होगा A के C स्टार्ट होगा A के एंड होने पे, D स्टार्ट होगा A के एंड होने पे, E स्टार्ट होगा B और C के एंड होने पर, F स्टार्ट होगा D के एंड होने पर, G स्टार्ट होगा E होने पे. एक फैक्ट्री का लेआउट दिमाग में रखिए और उसका टाइम एस्टिमेट से ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि पता कंप्लीट हो ही जाएगा, लगभग कितना टाइम लगेगा. नॉर्मल में एवरेज टाइम है, तो पेसिमिस्टिक में बुरे से बुरा टाइम में क्या होगा. तो ऑप्टिमिस्टिक होता तो इट विल टेक 2 hours, 3 hours, 4 hours, 4 hours, 4 hours, 3 hours, 3 hours. It may be hour, it may be day, it may be week. Normal में 4, 5, 5, 6, 5, 4, 5. Pessimistic में 6, 9, 7, 10, 7, 8, 8. तो expected time हमने निकाल दिया using this formula O plus 4M plus P divided by 6. समझ दे सकते हैं. तो यहाँ से पता लग जाता है कि कितना expected time लगेगा to complete a particular activity with the help of Gantt chart. इसको हम शो कर सकते हैं दिस पर्टिकुलर इन Gantt चार्ट, जो ग्राफ में हम शो करते हैं. दिस इज अ टास्क नेम A to G, प्रेडिसर्स कितने कितने हैं इसके पीछे, ड्यूरेशन जो हमने यहाँ से देखा है ड्यूरेशन दैट वी विल कॉपीड हेयर. यहाँ पर इन्होंने डेज में किया है, इट डिपेंड्स ऑन यू. और वो आप यहाँ कर दिए 0, यहाँ पे 0 है, फिर 4 days, 4 days हमने नोट कर लिया. इसके पीछे कुछ नहीं है तो 5.33 days आगे. ये 2 जहाँ से ये वाला ख़त्म होगा वहाँ से वहाँ स्टार्ट होगा 5.17, यहाँ से 6.33 days. यहाँ पर देख लेते हैं हम. ये जब 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, 3 और 4 कंप्लीट होंगे, वहाँ से हम ले लेंगे 5.17 days. जहाँ पर 5th कंप्लीट हो रहा है वहाँ से हम ले लेते हैं 4.5 days. जहाँ 6 खत्म होता है वहाँ से बोलते हैं 6.17 days. सो ये पता लगता है कि कहाँ पे काम स्टार्ट होता है और दूसरा काम कहाँ पर स्टार्ट होगा. पहला एंड हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ. तो ये देख रहे हैं दोनों साथ चल रहे हैं. ये यहाँ कंप्लीट होने के बाद दोनों चलते हैं, जबकि ये वाला चल रहा है. ये कंप्लीट हुआ तो ये वाला स्टार्ट हो गया, लेकिन ये वाला काम चल रहा है. ये कंप्लीट हुआ तो ये स्टार्ट हो गया, लेकिन ये वाला काम चल रहा है. ये कंप्लीट हुआ तो ये वाला स्टार्ट हो गया. तो हमने 2 कलर में शो कर दिए, दैट इज रेड एंड ब्लू. रेड जब एक कंप्लीट हो चुका, दूसरा स्टार्ट हो रहा है. ब्लू जब दूसरा ऑनगोइंग चल रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Gantt चार्ट. Then we are having work breakdown structure. As the name appears, work breakdown, we have to break down all the work. जो भी मेरा काम मुझे कंप्लीट करना है उसका डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेकआउट कर लिया. तो वर्क को भी और कॉस्ट को भी, दैट वी हैव टू बी केयरफुल. तो पहले क्या करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई द की एलिमेंट्स, फिर ब्रेकआउट करेंगे कंपोनेंट्स में, फिर कंटिन्यू करेंगे जब तक मेरा काम मैनेजेबल नहीं हो जाता. और देखते हैं कैसे हम करेंगे. इसका एग्जांपल देख लीजिए वर्क ब्रेकडाउन का. फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसा नहीं केवल ये फाइनेंस में यूज़ होना है, मार्केटिंग में होना है. वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ HR में जैसे क्या, वी हैव टू फिल अ वैकेंट पोस्ट. तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो हमने काम को ब्रेक डाउन कर लिया. एज फर्स्ट पार्ट जॉब, सेकेंड अबाउट कैंडिडेट, अबाउट सिलेक्शन. अब जॉब में व्हाट इज द नीड ऑफ जॉब, व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, उसके लिए बजट, ऑप्शंस, अप्रूवल. जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए व्हाट इज द जॉब, व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड. देन वी विल सीक द कैंडिडेट, अट्रैक्टिंग हो, फिर शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा. एडवर्ट कंटेंट क्या होना चाहिए, एडवर्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए, शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या हो, उनके CV को रिव्यू करना, शॉर्टलिस्ट करना है. सिलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू करना है, उसके लिए वेन्यू क्या होगा, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगी, टूर क्या होगा, वो यहाँ पर आएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, एंड वी हैव टू टेक डिसीजन. और पोस्ट सिलेक्शन, जब सिलेक्शन हो जाएगा उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी, उनका फिर इंडक्शन करना पड़ेगा. सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. देन वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, RAM. इसका एक और नाम होता है RACI, हम डिस्कस करते हैं अभी. RAM रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड रोल्स इन कंप्लीटिंग टास्क और डिलीवरेबल्स फॉर अ प्रोजेक्ट.
It is used by the project manager in क्लैरिफाइंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन क्रॉस फंक्शनल टीम। एक कंपनी में, फैक्ट्री में बहुत सारी टीम काम करती हैं, तो जरूरी नहीं एक व्यक्ति एक ही काम करता है, तो क्रॉस फंक्शंस होते हैं। एक पर्सन यहाँ से यहाँ काम करता है, बट इट मे वर्क फॉर अदर फंक्शंस आल्सो। ऐसी जो सेकंड डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, दे मे वर्क फॉर अस आल्सो। सो उसका प्रॉपर मैट्रिक्स बनाना है कि द पर्सन, उस पर्सन की व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द असाइनमेंट्स आर देयर। इट इज आल्सो बीइंग कॉल्ड एज RACI. RACI stands for Responsible, Accountable, Consulted and Informed Matrix. So the RACI matrix is responsible for assignment chart, as we have discussed. ये डिस्कस हमने कर दिया है. So we may have this example. Responsibility assignment matrix हम देख सकते हैं, जैसे ये डिलीवरेबल है, WBS और WBS आपको याद होगा, है ना, राइट, वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम. ये पीपल है, प्रोजेक्ट मैनेजर, टास्क लीडर, स्टाफर ए, ग्रुप डायरेक्टर, परचेजिंग. अब वी में सी वन पर्सन कहाँ कहाँ काम कर सकता है. जैसे सपोज एक काम में है क्वेश्चन डिजाइन करना, टू सेलेक्ट रेस्पोंडेंट्स, टू हैव देयर प्री टेस्ट एंड फाइनल क्वेश्चन प्रिंटिंग. सो वन प्रोजेक्ट मैनेजर इज वर्किंग ओवर द टू पार्ट. क्वेश्चन डिजाइनिंग में भी उसका रोल है और क्वेश्चन प्रिंटिंग में उसका रोल है. वी में हैव द रोल ऑफ टास्क लीडर. The role of task leader is in questionnaire designing, respondents, pre-test में और final questionnaire printing में. आप देख रहे होंगे SAP3 words are used. P is primary responsibility and S is secondary responsibility is approval. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लीडर अप्रूवल भी कर रहा है और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, राइट. उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टेन है और जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है अप्रूवल लेना. स्टाफर एक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन डिजाइन करने की, तो ये डिजाइन करेगा और अप्रूव करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फिर आगे भेजेगा, राइट. ऐसे ही वी मे हैव द डिफरेंट ग्रुप लीडर्स, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड डिफरेंट रोल, राइट. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अलग अलग कंपोनेंट्स पे, अलग अलग WS पे अपने अपने रोल को प्ले करने के लिए, राइट. सो आई वुड बी हैविंग द अनदर वीडियो which will follow the different project scheduling and network. Thank you.